स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। तो नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन अभी नहीं हुआ था, आप लोगों को करा दिया वाटर पॉल्यूशन? अभी नहीं हुआ वाटर पॉल्यूशन। विनय कुमार यादव, वाटर पॉल्यूशन हो गया? विनय, अरे बताओ राजकुमार। वाटर पॉल्यूशन हो गया? ओके ओके ठीक है, वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। Any type of pollution is the contamination of the that particular type of the species. Like if air is polluted, then it is known as air pollution. If water bodies are polluted, then known as the water pollution. So basically, water pollution is the contamination of water bodies like ocean, river, aquifers, and groundwater. Any type of water bodies when contaminated with the pollutants are known as the water pollution. And the reason of this pollution mainly is the human activities. In some cases, it may be natural activities, but the most of region is the human activity. It occurs when pollutants like particles, dust particles, chemicals or substances uh, when contaminated the water, then or discharged directly or indirectly into the water, then this is called the water pollution. So water pollution is the second most imperative environmental concern along with air pollution. क्योंकि हवा और पानी दोनों ही जरूरी है. So air pollution is harmful, but at the same time water pollution is equally harmful for the human being. Any change or modification in the properties of the water, like physical, chemical, or biological, means the change in the taste, change in the turbidity, is comes under the category of the water pollution. The pollutants may be of different type, like organic pollutants, inorganic pollutants, solid waste material, thermal pollutants. Different type of pollutants are responsible for this water pollution. What is the organic pollutants? Organic pollutants means natural organic pollutant, sewage and industrial effluent, which is directly dumped into the water bodies, synthetic organic chemicals, microbiological pollutants, and oils. Microbiological pollutants means weeds, algae, fungi. इस टाइप का कंटेमिनेशन होगा तो these pollutants come under the category of the organic pollutant. अलग से माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की अलग से भी कैटेगरी है, बट दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आल्सो. इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनसे जो मिनरल्स हैं या हैवी मेटल्स हैं, ये जो कंटामिनेंट्स होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक. और रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जितने भी पावर प्लांट्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को जहां पर प्रोसेस करते हैं, उनका जो इफ्लुएंट है वो आएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स में. When this effluent directly dump into the water bodies, then these type of contaminants come under the category of radioactive pollutants. Next is the suspended solids and sediments. Suspended sediments से मतलब है जैसे कि जो सीवेज है या जैसे ऑयल स्पिल है वो वाटर में जा रहा है, तो वो आएगा सेडिमेंट्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स. हीट और थर्मल पॉल्यूशन में आएगा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका जो इफ्लुएंट है उनसे क्या निकल रहा है, जो क्योंकि हीट और थर्मल
पॉल्यूशन है, तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है जब उनसे जो इफ्लुएंट निकलेगा तो नेचुरली उसका टेम्परेचर हाई होगा, मीन्स वो हॉट होगा, तो वो जो वाटर बॉडीज में मिलेगा तो वो इस पॉल्यूटेंट्स में आएगा, हीट और थर्मल पॉल्यूटेंट्स में, एंड विल क्रिएट द थर्मल वाटर पॉल्यूशन. The sources of the water pollution can be divided into two categories. One is the point and second is the non-point. आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? Yes, ma'am. So the sources can be divided into two categories. One is the point, second is the non-point. So what is the meaning of point and non-point? Point means direct contact to the water bodies comes under the category point. और इनडायरेक्टली से मतलब है जैसे कि रेन वाटर है, when rain falls it will cut off the soil, means it will create the soil erosion, और उसके थ्रू जो कंटामिनेशन होगा तो वो क्या हो गया, रेन वाटर ने डायरेक्ट पॉल्यूशन नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो कंटामिनेंट्स गए और वाटर बॉडीज में मिक्स हुए तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट. सो जो डायरेक्ट सोर्स है वो आती है पॉइंट में, और जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो होती है नॉन पॉइंट. पॉइंट में जैसे कि डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, ठीक है, और सिटी का ड्रेन, जैसे कि यहाँ मथुरा में यमुना पोल्यूशन है तो वो डायरेक्ट उसमें ड्रेन को डंप कर रहे हैं तो वो आएगा पॉइंट कैटेगरी. नॉन पॉइंट में है जैसे एक तो हो गया रेन वाटर, दूसरा हो गया कि जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का एक्सेसिव अमाउंट जब सीपिंग होने लगेगी सॉइल के साथ में तो वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड वाटर में, एंड इट विल कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर, तो वो उसको कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्स. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे फिजिकल इफेक्ट है, ऑक्सीडेशन इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है. तो फिजिकल इफेक्ट में है जो कि विजिबल इफेक्ट होगा, जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, टर्बिडिटी चेंज हो जाएगी, या वाटर के ऊपर ऑयली सरफेस क्रिएट हो रही है, जैसे कि शिप है और शिप में से लीकेज हो गई ऑयल की तो उससे क्या होगा, वाटर के ऊपर ऑयली सरफेस बन जाएगी, तो उसको कहेंगे फिजिकल इफेक्ट. ऑक्सीडेशन इफेक्ट से मतलब है कि जब वो ऑयली लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट हो जाता है, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट कम होने से क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जिसको बीओडी कहते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड खत्म हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा. जैसे कि कब होता है ये, जब उसमें इम्प्योरिटी जैसे सल्फर की इम्प्योरिटीज, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज जब उसमें मिक्स हो जाएंगी तो उससे जो इफेक्ट होगा वो इट विल अफेक्ट द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन इफेक्ट. टॉक्सिक केमिकल इफेक्ट्स मींस केमिकल इंडस्ट्री जो है उनसे जो इफ्लुएंट निकल रहा है उससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा, उससे इफेक्ट क्रिएट कैसा होगा, जैसे कि क्रोमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, हैवी मेटल्स का, मरकरी का, कैडमियम का, इस तरह का जब हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, किडनी जैसे स्टोन्स बन जाती है, कहते हैं कि वहाँ का वाटर खराब है इसलिए वहाँ किडनी में स्टोन्स हो रही है, तो उसका रीजन है कि हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोन बनाते हैं. तो लिवर डैमेज, किडनी, ब्रेन डैमेज, ये होता है टॉक्सिक केमिकल इफेक्ट. नेक्स्ट होता है न्यूट्रिएंट इफेक्ट एंड यूट्रोफिकेशन. ये आपके इसमें फर्स्ट टर्म में भी आया था और मोस्टली गलत लिख के आए थे यूट्रोफिकेशन को. यूट्रोफिकेशन होता है जब सॉइल का इरोजन होने की वजह से जो फर्टाइल लेयर है, न्यूट्रिएंट लेयर है, वो वॉश ऑफ हो जाती है, तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिकेशन से जब टॉप सॉइल लेयर रन ऑफ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम अफेक्ट होगा और उसको कहेंगे यूट्रोफिकेशन. मींस रन ऑफ द न्यूट्रिएंट लेयर इज द यूट्रोफिकेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वीड क्रिएट होना, बैक्टीरिया, एल्गी लग जाना वहां पर,
वायरस का अटैक, तो इस तरह के जो इफेक्ट होंगे उनसे क्या होगा, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस है, डिसेंट्री है, इस टाइप की जो डिजीज क्रिएट होंगी वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट। हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, दो तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो सोर्स को ही कम कर दें जहां से वो जनरेट हो रहा है, और या फिर जनरेट हो गया है तो उसको फिर कंट्रोल करें। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनपुट कंट्रोल और एक होता है आउटपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल का मतलब है कि उस सोर्स को ही कंट्रोल कर दें जहां से कि वो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, और इन आउटपुट कंट्रोल होता है कि जब वो क्रिएट हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है, पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, तो उसको फिर कंट्रोल करें। तो इनपुट कंट्रोल तो डायरेक्ट हो गया कि सोर्स को कंट्रोल करें। आउटपुट कंट्रोल जो है उसमें क्या करना है, जो पॉल्यूटेंट्स है उनको कंट्रोल करना है। तो आइदर उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दें या फिर स्ट्रेंथ को रिड्यूस करें। So in the both cases, either volume reduction and in the case of strength reduction, it can be controlled by using some techniques जिनको कहते हैं treatment plants, water treatment plants, WTP. And this WTP can work either on the basis of the sewage treatment plants or on the effluent treatment plants. STP, sewage treatment plant, yeah, effluent treatment plant means ETP. In these treatment plants, pollutants are removed through sequential steps. Number of steps को follow करते हैं in a particular sequence. Like first treatment will be the primary treatment, then secondary, then tertiary. So step-wise treatment will be given to treat the polluted water. In primary treatment, bigger impurities are removed. Bigger impurities means जो visible impurities हैं उनको सेपरेट करना, जैसे कि सेडिमेंटेशन से फिल्टर करें या डिकेंट करें। सेडिमेंटेशन जैसे कि जो लार्ज इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, फिल्टर कर लीजिए उसको। जो सेडिमेंटेशन हो गया है तो उसको फिल्टर कर लें, तो उससे कर सकते हैं। या डिकेंट कर दें कि जो अपर लेयर है उसको डिकेंट कर लें और नीचे का सेपरेट कर दें। तो ये कब होगा, जब इमिसिबल इम्प्योरिटीज होंगी, मीन्स वो क्लियरली वाटर में इमिसिबल है तो वाटर को सेपरेट आउट कर लेंगे, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए बैक्टीरिया यूज करेंगे, पर्टिकुलर बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसके थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके बाद जो इम्प्योरिटीज बचती हैं उनको फिर थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। थर्मल ट्रीटमेंट या तो यूवी लैंप यूज करें या ओजोनोलिसिस करें, तो उसके थ्रू उसको कर सकते हैं। जैसे कि घर में आरओ प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें यूवी लैंप लगी होती है, एक फिल्टर लगा रहता है और एक यूवी लैंप लगी होती है, तो उसके थ्रू टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से वाटर को ट्रीट करते हैं, जिसको कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको, सॉलिड वेस्ट को लिक्विड वेस्ट से अलग रखें, मिक्स नहीं होने देंगे, तो वाटर को पॉल्यूशन से रोक सकते हैं। दूसरा, जो पॉल्यूटेड वाटर है या तो उसको डंप करना ही है वाटर बॉडीज में, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के बाद उसको डंप करेंगे तो इतना वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जितनी भी जैसे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है, या जो घर से जो निकल रहा है पॉल्यूटेड वाटर, तो उसको ट्राई करें कि उसको ड्रिंकिंग वाटर में डायरेक्ट नहीं डंप करें, उसको वहां से अवॉइड करें, तो ड्रिंकिंग वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर और क्या टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, वाटर बॉडीज को टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहें, वहां से एक्वेटिक वीड्स हटाएं, ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो हो गए हैं अनवांटेड प्लांट्स उनको वहां से क्लियर करें। कोरोजन हो रहा है ये तो उसमें तो कोरोजन को हटाएं। कोरोजन का टर्म कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे घर में जो वाटर बॉडीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि वाटर टैंक यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी टाइम टाइम पर क्लीन होनी चाहिए।
दूसरा जैसे कि रिवर्स में पॉन्ड्स में एक फिश और यूज करते हैं, उसको कहते हैं गैम्बूसिया एपिस। ये फिश जो होती है ये क्या करती है, मॉस्किटो के जो एग्स हैं उनको खाती है, उन पर सरवाइव करती है। तो उससे क्या हुआ, मॉस्किटो एग्स को खा लेगी तो वहां पर मॉस्किटो डेवलप नहीं होंगे और वाटर को पॉल्यूट होने से रोक सकेंगे, इवन डिजीज को भी स्प्रेड होने से रोक सकेंगे। तो ये जो फिश है गैम्बूसिया एफिन, ये यूज होती है मलेरिया कंट्रोल में। और क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन करें, क्योंकि एफोरेस्टेशन से क्या होगा, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन जोन इंक्रीज होगी, और ग्रीन जोन इंक्रीज होगी तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा और वाटर पॉल्यूट नहीं होगा। और सबसे मेन चीज है कि पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द पॉल्यूशन के, पॉल्यूट करना ही नहीं है तो चीजें काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में कुछ पूछना हो तो पूछिए। चलिए, नहीं कुछ पूछना है तो नेक्स्ट करते हैं लैंड पॉल्यूशन। अभी शेयर कर रही हूँ। हो गई शेयर स्क्रीन? Yes, ma'am. ये मैं जिनके नाम कॉल कर रही हूँ उनकी एब्सेंट मार्क करूंगी, क्योंकि वो उन्होंने जस्ट ऐसे ही ज्वाइन किया हुआ है। ये तो प्रूफ एब्सेंट मार्क होगी। एक बार नाम कॉल कर दे रही, बता देना जिसका जो भी फ्रेंड हो। रितु कुशवाहा, सत्यम तिवारी, शिवम अग्रवाल, शुभ्रांश, तनरुद्ध, तुषार पाल, शुभम गौतम, यशराज, तन्मय, पीयूष, राजेश कुमार, रवि प्रताप चौहान, सूरज मिश्रा, सुरेंद्र प्रताप तोमर, उज्जवल सक्सेना, प्रांशु अग्रवाल, सत्यम मिश्रा, श्रुति बिंदल, संजय सिंह। इनकी एब्सेंट मार्क होगी और प्रूफ मेरे पास है। So students, next is the land pollution. Land pollution start करने से पहले we have to know some facts, like every year one Indian produces over 3,285 pounds of hazardous waste. एवरेज निकाला जाए तो डेटा बता रहा है कि वन इंडियन कितना प्रोड्यूस कर देता है, 3,285 पाउंड्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एवरी ईयर। एवरी डे जो डेटा है वो बताता है कि वन इंडियन थ्रो अवे 1 मिलियन बुशेल ऑफ लिटर आउट देयर कार विंडो। इतना वो अपने कार से फेंकते रहते हैं चलते फिरते। In an average day in India, people throw out 200,000 tons of edible food.
ठीक है, इतना फूड को वेस्ट कर देते हैं, सबसे ज्यादा बुफे सिस्टम में वेस्ट होता है, और अननेसेसरी क्योंकि पैसा है तो बस खरीदो खाओ, जितना नहीं खाओ उसको फेंक दो, तो इस तरह से इडेबल जो फूड है उसकी इतनी वेस्टेज हो रही है। We throw away enough trash every day to fill, इतना ट्रेस हम थ्रो आउट करते हैं कि 63,000 गार्बेज ट्रक्स कैन बी फिल्ड। ठीक है, 63,000 गार्बेज ट्रक्स फुल हो जाएंगे, इतना हम ट्रेस थ्रो करते हैं। लैंड पॉल्यूशन causes us to lose 24 billion tons of top soil every year। ठीक है, कितना टॉप सॉइल वेस्ट हो जा रहा है, 24 बिलियन टन्स एवरी ईयर। यदि ये नहीं हो तो प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ आवर ट्रैश इज डिस्पोज्ड इन लैंडफिल्स। लैंडफिल्स जो स्लोप बने हुए हैं, जैसे वहां रोहतक और दिल्ली बाईपास पर बना हुआ है, वो लैंडफिल्स। यदि हम अपनी जो यूज कर रहे हैं चीजों को, उनको हम रीयूज और रिसाइकिल करें, तो वी कैन प्रिवेंट दिस लैंडफिल्स एंड लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, ओनली एवरेज जो है वो 2% ही हम उसको रिसाइकिल करते हैं, यदि 100% करने लगे तो लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। लैंड पॉल्यूशन क्या है? लैंड पॉल्यूशन इज डिस्ट्रक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, क्यों हो रहा है ये डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? उसका जो मेन कॉज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इन सम केसेस नेचुरल एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, कोल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, all activities are responsible for this land pollution. Since the industrial revolution, natural habitats have been destroyed and environment have been polluted, causing diseases। क्योंकि नेचुरल जो चीजें हैं वो डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, तो उससे क्या हो रहा है, डिजीज क्रिएट हो रही है, डिफरेंट टाइप के कंटामिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डिजीजेस क्रिएट हो रही है in human as well as in animal also. Human actions have also caused many large areas of land to lose or reduce their capacity. Capacity reduce से क्या मतलब है? क्योंकि जो टॉप फर्टाइल लेयर जब इरोजन हो जाएगा उसका, तो क्या होगा, वहां का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा। So in direct way, we can say that the land degradation is also the part of the land pollution, क्योंकि land को नुकसान पहुंच रहा है। These are the some sources of the land pollution, like direct deposition from industries and agriculture। डायरेक्ट डिपोजिशन से मतलब है, जैसे एग्रीकल्चर सेंस में तो जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है उसके थ्रू नाइट्रोजन का कंटामिनेशन हो रहा है, नाइट्रोजन सीपिंग हो रही है, या इंडस्ट्रीज का जो इफ्लुएंट है उससे जो हैवी मेटल्स है इफ्लुएंट में, वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो रही है और उससे लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा सोर्स ये भी है कि जो स्मोक बन जाता है, स्मोक रेन के साथ में मिक्स होकर एसिड रेन बनाता है, और एसिड रेन का डिपोजिशन होने से भी फर्टिलिटी डैमेज हो रही है। या दूसरा एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन मीन्स गैसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन एंड आर जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और एसिड रेन फिर लैंड पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दीज आर द सोर्सेज, these are the sources in detail, like littering, पूरा फेंक रहे हैं जो हम, herbicides, insecticides and pesticides which are using in the agricultural,
कंस्ट्रक्शन डेब्रिसेस एंड वेस्ट, जो कंस्ट्रक्शन से कचरा निकल रहा है और वेस्ट निकल रहा है उससे पॉल्यूशन हो रहा है। माइनिंग वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट से जो इफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, ह्यूमन सीवेज एंड ऑयल एंड एंटी फ्रीज लीकिंग फ्रॉम कार्स। कार से चाहे एंटी फ्रीज की लीकिंग है या ऑयल की लीकेज है तो वो लैंड को पॉल्यूट करेगी। Components of the land pollution can be divided into two categories. One is the solid waste, second is the soil pollution. सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट जो भी गार्बेज है जो अनवांटेड और यूजलेस है, रिगार्डलेस ऑफ द हैजार्डस नेचर ऑफ दिस वेस्ट, we threw these garbage into the environment and polluting the environment. So this type of the garbage, solid or semi-solid, come under the category of the solid waste. सॉलिड वेस्ट की सोर्सेज क्या है? जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट, एशेस, गार्बेज, दीज ऑल आर द सॉलिड वेस्ट। सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन जनरली होता है जो केमिकल्स है। केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट से आ रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज से, तो वो सॉइल पॉल्यूट करते हैं। जैसे उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करें या एग्रीकल्चरल के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जैसे इरिगेशन में एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे तो उससे टॉप लेयर डैमेज होगी और सॉइल का पोल्यूशन होगा। मेन कॉजेज क्या है? अर्बनाइजेशन, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैंड पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके लैंड पोल्यूशन के? देयर कैन बी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल्स है, वाटर है, सॉइल है, सब पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, स्किन डिजीजेस क्रिएट होंगी, कैंसर क्रिएट होगा। जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि अब कैंसर ज्यादा हो रहा है, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सब किसी न किसी वे में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पोल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द स्प्रेडिंग। Toxic materials that pollute the soil can get into the human body directly by coming into the contact with the skin, being washed into water sources like reservoir and river में direct जा रहा है, eating fruits and vegetables that have been grown in polluted soil. Students, if soil is polluted and the grown fruits and vegetables, if we are taking this type of the vegetables and fruits, so obviously these type of the fruits and vegetables will also be contaminated with this type of the contaminants. क्यों? क्योंकि प्लांट्स कहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं? सॉइल से, तो वो प्लांट्स में भी जाएगा और प्लांट्स के थ्रू हम लोगों में जाएगा। ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड डस्ट और पार्टिकल्स, जो पॉल्यूशन है उसमें यदि हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जा रहा है। Dump sites and landfills also come with serious problems. जैसे जो लैंडफिल है, जैसे आपने वहां पर देखी है जो रोहतक बाईपास पर है, तो उसमें आपने देखा होगा एक तो बहुत गंदी स्मेल आती है, दूसरा वहां पर इतना ज्यादा गार्बेज इकट्ठा होता है कि उसमें रेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो वहां पर सरवाइव करने लगते हैं और उनके थ्रू फिर डिजीज स्प्रेड होती है। जैसे कि रेट से प्लेग हो जाता है ना, तो एक तो स्मेल आएगी, दूसरा उससे डिजीज स्प्रेड होगी, थर्ड वन होगा जो स्मेल है और जो देखने में इतना गंदा लग रहा है, तो उससे क्या होगा, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन कम होगा, और टूरिस्ट का अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो डाउन होगी, क्योंकि टूरिज्म से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कम होगा और इकोनॉमी डाउन होगी। और क्या हो सकता है कि जितना ज्यादा लैंडफिल होगा उतना वहां पर एयर पोल्यूशन भी होगा,
क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे आग जला देते हैं कि जिससे वो बर्निंग होके खत्म हो जाए। तो बर्निंग तो हो रही है, वो डिकम्पोज तो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और उससे डिजीज स्प्रेड हो रही है। Next is the control. So how to control this land pollution? सबसे पहला तो है कि if people are educated and they know the consequences of this type of pollution, so they will surely will take the action to control the land pollution or different type of pollution. So in all the cases of the pollution, means in the case of environment protection, educated people are must, means education of the people is necessary. So that's the reason environment study is necessary to study. Reuse any item that you can. ठीक है, कोई भी आइटम है यदि आप उसको कैसे भी रीयूज कर सकते हैं। रीयूज या तो उसका कुछ डेकोरेटिव आइटम बना लें या उसको रिसाइकिल करके फिर उसको किसी तरह से यूज कर लें, तो इस तरह से लैंड पोल्यूशन को रोक सकते हैं। The greatest prevention to land pollution is in the 3 R's. कौन से हैं वो 3 R's? Reduce, reuse and recycle. Reduce waste, reuse things and recycle things. By using these 3 R's, we can control the land pollution. Personal litter should be disposed properly. जो भी आपका लिटर क्रिएट हो रहा है उसको प्रॉपरली मैनेज करें। मीन्स जैसे जो डस्टबिन है वो 2 तरह के डस्टबिन गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, जैसे सूखा अलग करें, गीला अलग करें, पूरा। तो उससे क्या होगा कि म्यूनिसिपालिटी को भी उसको सेग्रीगेट करने में इजी होगा और उसको वो रिसाइकिल कर पाएंगे। स्टोर ऑल टाइप ऑफ द लिक्विड केमिकल्स एंड वेस्ट इन स्पिल प्रूफ कंटेनर। स्पिल प्रूफ कंटेनर मीन्स टाइट कंटेनर हो जिससे कि वो उससे बाहर नहीं निकले। तो बाहर नहीं निकलेगा तो लैंड को पॉल्यूट नहीं करेगा। जैसे कि घर में वो इन्वर्टर यूज करते हैं तो इन्वर्टर की बैटरी के नीचे वो स्पिल ट्रे यूज करें जिससे कि वो उसमें ही उसका जो स्पिलिंग हो रही है उसके ट्रे के अंदर है। बाई बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, या तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को परचेज करें या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स की रिसर्च करें कि हाउ दे कैन बी बायोडिग्रेडेबल। ईट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ठीक है, पहले तो वो हमसे पहली जो जनरेशन थी वो क्या थी, वो ऑर्गेनिक फूड करते थे ना, अच्छे से एग्रीकल्चर में करते थे, वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे। अब क्या हो रहा है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी माइंडेड नेचर। ठीक है, क्या लगता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम उसको सेल आउट कर पाएंगे, उतना ज्यादा मनी क्रिएट होगा। ठीक है, without taking in mind that the fertilizer or chemicals are indirectly murdering the person। ठीक है, वो स्लो पॉइजन दे रहे हैं उसको। तो we must try that we use organic foods which without pesticide। Don't dump motor oil on the ground। ठीक है, government can also ensure that there are incentive for people to recycle and reuse things। ठीक है, सबको ये अच्छा लगता है ये उसका रिवॉर्ड मिले, तो ये गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इंसेंटिव दे जिससे कि लोग मोटिवेट हो कि उसको रीयूज करें और रिसाइकिल करें, तो उससे पॉल्यूशन भी रुकेगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। Don't use pesticides if you can and use a drip tray to collect engine oil। डायरेक्ट लैंड के कांटेक्ट में नहीं आए तो लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। इफ इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है उस वो तो क्या हो रहा है, वो सर्वाइवल साइट्स हैं फॉर द रैट्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, and these are the species which are responsible for spreading the diseases। 1 quart used motor oil, 1 quart equal होता है 1.13 लीटर के। 1.13 liter of the motor oil can contaminate 100,000 gallon of drinking water।
मीन्स इतना सा भी ऑयल यदि वाटर के ऊपर लेयर बना रहा है तो वो इतने गैलन वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को खत्म कर दे रहा है, कंटामिनेट कर दे रहा है। लीचेट लीचिंग यदि हो रही है, यदि वाटर जो है उनको फर्टिलाइजर को अपने साथ में ले जा रहा है एक्सेसिव अमाउंट को, तो उससे लीचिंग हो रही है और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर डैमेज हो रहा है। तो ये तो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो। सॉइल क्या है? सॉइल इज क्रिटिकल टू लाइफ। क्यों है क्रिटिकल? क्योंकि सॉइल से प्लांट्स न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और प्लांट से हम लोग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो ये सॉइल ही कंटामिनेट हो जाएगी तो पूरा एनवायरनमेंट ही कंटामिनेट हो जाएगा। The factors which affect the soil means how the pollutants will contaminate the soil. What is the rate of the contamination will be? It will depend upon the nature of the soil. Nature of the soil means what type of the structure of soil, how many organic matter is there, what type of the pores are present, what is the size of the pores of soil. तो इस टाइप की उसकी जो टेक्सोनॉमी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, उस पर डिपेंड करेगा कि कंटामिनेंट्स कितनी जल्दी उसको पॉल्यूट करेंगे। तो उसके लिए ये सॉइल का स्ट्रक्चर है। सॉइल की लेयर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 लेयर्स में, O A B C। O होता है ऑर्गेनिक मैटर लेयर, A इज द टॉप सॉइल, B इज हॉरिजन, B हॉरिजन क्या है? वो सब सॉइल है, और C जो होता है वो सबसे नीचे की लेयर हो गई, पेरेंट मटेरियल जिसको होता है। तो ये जो ऊपर की है O और A, ये है फर्टाइल, टॉप लेयर है। तो इसके थ्रू फिर कंटामिनेशन होगा। The contamination of the soil will depend upon the structure of the soil. So students, it's all about the land pollution. तो 4 आपके pollution थे, वो आपके कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसी को कुछ पूछना हो इसमें पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।